وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں پارلیمانی لیڈرز کا ان کیمرہ اجلاس آج ہو رہا ہے۔ اجلاس میں پارلیمانی لیڈرز کو ایران اور مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو برادر خلیجی ملکوں کی قیادت سے اپنے حالیہ روابط سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کی فریقین سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ وزیر اعظم نے صدر ایردوان کو افغانستان کے تنازع میں حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت۔ ترکی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی اور مسلسل رابطے میں رہنے اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران اور خلیجی ملکوں میں صورتحال ابتر، فضائی روٹس بند ہیں۔ پاکستان سمیت کئی ملکوں کے افراد ایران اور خلیجی ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 آورز فعال ہے۔ زمینی راستے تو کھلے ہیں لیکن ان میں بہت وقت لگتا ہے۔ مختلف ملک زمینی راستوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ وطن واپسی کے لیے اپنے شہریوں کی معاونت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر شدید حملے۔ تہران کی مشہور آزادی اسکوائر پر موجود شہریوں اور قم میں اسمبلی آف ایکسپرٹس کی عمارت پر تازہ بمباری، متعدد شہادتوں کی اطلاعات۔ حملوں میں اب تک 800 سے زائد افراد شہید۔ ایران کی جوابی کارروائی۔ دبئی میں امریکی سفارت خانے اور فوجیرہ بندرگاہ پر تازہ حملہ۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے میں CIA اسٹیشن تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور مغربی کنارے میں بھی ایرانی حملے، متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات۔ امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں 160 امریکی ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں اور زخمیوں کی مجموعی تعداد 650 ہو گئی۔ بحرہ ہند میں امریکی نیوی کے تباہ کن جہاز کو نشانہ بنایا، ایرانی فوج کا دعویٰ۔ امریکہ کا آبنہ ہرمز کھلوانے کا فیصلہ، ضرورت پڑنے پر آبنہ ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ اقدام کا مقصد خلیج میں جاری کشیدگی کے دوران تجارتی سرگرمیوں کا تحفظ ہے۔ ایران کی فضائی، بحریہ اور قیادت ختم کر دی۔ تیل کی قیمت شاید کچھ عرصہ بلند رہے۔ جنگ ختم ہونے پر تیل کی قیمت پہلے سے بھی زیادہ کم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے سعودی سفیر نواف سعید المالکی کی اسلام آباد میں ملاقات۔ پاکستان کی بندرگاہ یابرو کے ذریعے متبادل تیل سپلائی روٹ کی درخواست۔ سعودی عرب کی سپلائی کی سیکیورٹی کی مکمل یقین دہانی۔ پاکستان کے لیے ایک جہاز جلد روانہ کرنے کی یقین دہانی۔ سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے ہنگامی صورتحال میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سعودی عرب کی حمایت پر شکر گزار ہیں علی پرویز ملک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اڈے نہ دینے پر اسپین کے خلاف بڑا اقدام۔ یورپی ملک نے امریکی فوج کو حملوں کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ اسپین کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات منقطع کرنے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ مودی ایران حملے سے قبل اسرائیل کیوں گیا؟ انٹرنیشنل میڈیا اور بھارتی اپوزیشن کی شدید تنقید۔ مودی کے دورہ اسرائیل نے عالمی سطح پر بھارت کو شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ مودی نے نتنیاہو کو ایران کے خلاف ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ امریکی بحریہ ایران کشیدگی کے دوران بھارتی بندرگاہیں استعمال کر رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مودی کا اصل ہدف ٹرمپ تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ مودی کو اسرائیلی پارلیمنٹ میں دیا گیا میڈل محض نمائشی قرار پایا۔ بھارت پر غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے الزامات بھی لگائے گئے۔ الجزیرہ۔ کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل کے الزامات، مبینہ بھارتی مداخلت پر سفارتی کشیدگی۔ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی کی غیر ملکی سرگرمیوں پر تحفظات کی تصدیق۔ سابق وزیر اعظم کینیڈین نے بھارتی عناصر کے ممکنہ کردار کا الزام عائد کیا۔ بھارت نے الزامات کو مسترد کیا۔ کینیڈا میں سکھ کمیونٹی کا شدید رد عمل، تحقیقات جاری۔ دی پوسٹ۔ پاک فوج کی افغان طالبان، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 50 مختلف مقامات پر دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ 3 اور 4 مارچ کی درمیانی شب بھاری ہتھیاروں سے موثر آپریشن۔ قلعہ سیف اللہ، چمن، سمبازا، کروانہ، جانی اور غزنالی سیکٹر پر کارروائیاں۔
सरहद पार से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात को निशाना बनाया गया। दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म बरकरार। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत तयशुदा अहदाफ के मुकम्मल हुसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी ज़राए। अफगान तालिबान और फितनातुल ख़वारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की मौसर कार्रवाइयाँ। चमन सेक्टर में खुफिया इत्तलात पर अफगान तालिबान की मुसल्लह तश्कील के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। एक अफगान तालिबान दहशतगर्द हलाक जबकि 3 को जख्मी हालत में जिंदा पकड़ लिया गया। पाक फौज ने आला पेशेवराना महारत का मुजाहरा करते हुए इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया। हुकूमत पाकिस्तान का $1 अरब AI फंड का कयाम। डिजिटल मईशत में नए मौके की जानिब एक अहम कदम। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर का AI फंडिंग का खैर मकदम। स्कूलों में AI निसाब मुतारिफ करा के मजबूत AI इकोसिस्टम कायम किया जाएगा। 2030 तक तलबा के लिए 1000 मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप्स और 10 लाख गैर IT अफराद को AI तरबियत दी जाएगी। AI फंड नौजवानों के लिए स्टार्टअप्स, छोटे और दरमियाने कारोबार और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए मौके फराहम करेगा। डॉक्टर नदीम जावेद। ICC T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मरहला आज से शुरू। पहला सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान कोलकाता में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 6:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कल दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड मुंबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को अहमदाबाद में शेड्यूल है। स्पेनी फुटबॉल कोपा डेल रे। बार्सिलोना सेमीफाइनल के दूसरे मरहले में एटलेटिको मैड्रिड को शिकस्त देने के बावजूद फाइनल तक रसाई हासिल न कर सका। बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को 3-0 से हराया। पहले मरहले में बार्सिलोना को 4-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एटलेटिको मैड्रिड की टीम 4-3 के एग्रीगेट से फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब। और अमेरिकन बास्केटबॉल NBA क्लीवलैंड कैवलियर्स ने डेट्रॉयट पिस्टन्स को 109 के मुकाबले में 113 पॉइंट से शिकस्त दे दी। शार्लेट हॉर्नेट्स ने डैलस मैवरिक्स को 90 के मुकाबले में 117 रन से हराया। स्टैंडिंग्स पर डेट्रॉयट पिस्टन्स की टीम सर फहरिस्त है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील की जाने बढ़ेंगे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में पार्लिमानी लीडर्स का इन कैमरा इजलास आज हो रहा है। इजलास में पार्लिमानी लीडर्स को ईरान और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ईरान पर इसराइली हमले और उसके बाद ब्रदर खलीजी ममालिक पर होने वाले अफसोसनाक हमलों की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोगान को ब्रदर खलीजी ममालिक की क़यादत से अपने रवाबित से मुतालिक भी आगाह किया, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल यकजहती का इरादा और बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के हवाले से बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने इस हवाले से करीबी और मुसलसल राबते में रहने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुश्तरका काविशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर को अफगानिस्तान के तनाजुर में हालिया पेशरफ से भी आगाह किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी अपने ऑफिशियल सदारती एक्स अकाउंट पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हमारी कोशिशों से तय पाने वाली जंगबंदी की बहाली में भी तुर्की किरदार अदा करेगा। सदर एर्दोगान ने खित्ते में तनाज़ात के हवाले से दोबारा सिफारती अमल शुरू करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तुर्की इस मकसद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मजीद कशीदगी से बचने के लिए तमाम फरीक तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में इजाफे समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि ईरान और खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहते हैं खलीजी ममालिक सफारतकारी की तरफ लौटें। पाकिस्तान किसी भी किस्म की सालिसी के लिए हाजिर है। तफसील बताएंगी नमरा सुहेल अपनी रिपोर्ट में। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान और खलीजी ममालिक की नाजुक और बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र खित्ते में फ़िज़ाई हदूद बंद हैं। उन्होंने कहा कि अपने शहरियों के महफूज इनखला के लिए खलीजी ममालिक की हुकूमतों के साथ मिलकर तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। इन तमाम ममालिक में जो है वो हमारा जो डियास्पोरा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये करीबन कोई ऑलमोस्ट 45 लाख से ज़्यादा लोग हैं। तो कोई पैनिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उनकी हुकूमतें भी बिल्कुल अश्योर कर रही हैं कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी महफूज है। हमें वहाँ से भी किसी अपने डियास्पोरा से किसी किस्म की ऐसी कोई इतला नहीं मिली। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सऊदी अरेबिया, फिर बहरीन, फिर ओमान, फिर कुवैत, फिर कतर, फिर अमारात, ये तमाम ममालिक जो हैं और ईरान, ये तमाम ममालिक में जो उनकी हुकूमतें हैं वो पूरी तरह सपोर्टिव हैं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहते हैं कि खलीजी ममालिक सिफारतकारी की तरफ वापस आएँ। अपनी जिम्मेदारी यही है कि इन तमाम भाइयों को और जितने बरादर ममालिक हैं इनको ये हम कन्विंस करें कि भाई बस अब आप रुक जाएं और इश्यूज़ को बैठ के आप डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। वापस डायलॉग प्रोसेस में लाने के लिए एफर्ट्स हैं, वो वज़ीर आज़म साहब खुद भी कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस की तरफ से मैं भी कर रहा हूँ और डिफेंस फोर्सेस की तरफ से सैयद आसिम मुनीर साहब एज फील्ड मार्शल साहब खुद भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इसराइल और अमरीका की जानिब से ईरान पर शदीद हमले जारी हैं। तेहरान के मशहूर आज़ादी स्क्वायर पर मौजूद शहरियों और क़ुम में असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत पर ताज़ा बमबारी हुई है, जिससे मुतअद्दिद शहादतों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अमरीका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी ने अब तक ईरान में 1097 शहरियों की हलाकत का दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 181 बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों में अब तक 5402 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं, जिनमें 100 बच्चे शामिल हैं। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 153 ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में फौजी अड्डों, तिब्बी मराकज़ और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर हमले किए गए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने ईरान के 17 बहरी जहाज़ों को तबाह किया है। ईरान ने भी इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव और मगरबी किनारे में ईरान ने कई हमले किए, जिसमें मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तलात हैं। ईरान ने दुबई में अमरीकी सिफारत खाने और फौजीरा बंदरगाह पर भी हमले किए हैं। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकी हलाक हुए हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। ईरानी गार्ड्स ने अपनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर अपनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। इक़दाम का मकसद खलीज में जारी कशीदगी के दौरान तिजारती सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ है। उधर स्पेन ने ईरान पर हमलों की मुखालिफत करते हुए अमरीका को हमलों के लिए मुश्तरका फौजी अड्डा फराहम करने से इनकार कर दिया है। हिस्पानिवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि स्पेन अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए अपने फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा। उनका कहना था कि गैर कानूनी और यकतरफा हमलों में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि स्पेन अपनी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी को तरजीह देता है। खबर एजेंसी के मुताबिक हिस्पानिवी वज़ीर आज़म के बयान के बाद अमरीकी तैयारों को उन अड्डों से हटा दिया गया। अमरीकी तैयारों को जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक मुंतकिल किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्पानिवी वज़ीर आज़म के इनकार के बाद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि स्पेन के साथ तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर रहे हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदा सूरत हाल पर बातचीत की। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। ईरान के खिलाफ शुरू की गई ये जंग खित्ते में ख़तरनाक रुझानात को जन्म दे सकती है।
उधर चीन ने ईरान पर फौजी कार्रवाइयों की मुखालफत करते हुए जंग बंदी का मुतालबा किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इसराइली हम मनसब गैडवन सार्ड से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि उनका मुल्क ईरान पर फौजी हमलों की मुखालफत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनई का कत्ल संगीन खिलाफ वर्जी है जिसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि चीन मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए मसाइल के हल का हामी है, जंग मसाइल का हल नहीं। इससे नए मसाइल और संगीन असरात जन्म लेंगे। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल मंदी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज समेत कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 6 और जापान की मंडियों में 3% गिरावट देखी गई। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। बर्नेट खाम तेल $83 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया है, जबकि सोने की फी ऑन्स कीमत $88 इजाफे से $5176 हो गई है। यूरोप में भी गैस की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। मोदी ईरान हमले से कबल इसराइल क्यों गया? इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय अपोजिशन ने तनकीद करते हुए कहा है कि मोदी के दौरा इसराइल ने आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले से ऐन कबल इसराइल यात्रा की टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। मोदी ने भारतीय खारिजा पॉलिसी को जाती मफादात की नजर कर दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिना इमदाद की यकीन दहानी करवाई। साबिक अमरीकी वजीर दिफा के मशहूर डगलस मैलग्रेगर ने मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लगरअंदाज होकर सामान उतार रहे हैं। इसराइली सहाफी इताई मैक ने दी वायर में मोदी को नेतन्याहू के इंतखाबी मुहिम का सस्ता इश्तिहार करार दिया। दी वायर ने इंकशाफ किया कि मोदी का असल हदफ नेतन्याहू के जरिए ट्रंप तक रसाई और खुशनुदी था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी को इसराइली पार्लियामेंट में दिया गया मेडल महज नुमाइशी था। मोदी का ईरान हमले से पहले दौरा इसराइल मशकूक और सिफारती तौर पर खतरनाक अमल था। अल जजीरा के मुताबिक भारत ने इसराइल को गजा में नस्ल कुशी के लिए हर तरह की इमदाद दी। TRT के मुताबिक ईरान के मामले पर मोदी अपने सियासी मफाद की वजह से खामोश रहे। कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल और मुबैना भारतीय मुदाखलत के मामले ने एक बार फिर सिफारती कशीदगी को जन्म दे दिया है। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के तर्जुमान के मुताबिक गैर मुल्की सरगर्मियों और जासूसी के इल्जामात की तहकीकात बदस्तूर जारी हैं। कैनेडियन जरीदे द पोस्ट के मुताबिक कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के तर्जुमान ने ईमेल के जरिए तस्दीक की कि कनाडा को गैर मुल्की सरगर्मियों पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात लाहिक हैं। साबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारतीय नासिर के मुमकिना किरदार का इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं, जिसे भारत ने मुस्तरद किया था। कनाडा में सिख कम्युनिटी ने वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती राबते और तहकीकात जारी हैं। अमन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान का वफ़द गुज़श्ता 3 रोज़ से बलूचिस्तान में मौजूद था। यहाँ कोयटा में हमने मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख से, हुकूमत के ज़िम्मेदारान से, मोहतरम जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान, मोहतरम जो गवर्नर हैं बलूचिस्तान के, होम सेक्रेटरी, IG और इसी तरह जो हमारे सलामती के इदारों के ज़िम्मेदारान हैं, उनके साथ मुलाकातें की। जो सूरत हाल है उसके ऊपर मुफस्सल बातचीत की और तमाम हालात से आगाही हासिल की। बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम और एहसान से हम ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और सिर्फ़ पाकिस्तानी कौम को नहीं बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले हर फ़र्द को कह रहे हैं कि वो ये बात जान ले कि फितना हिंदुस्तान हो या फितना ख़वारिज हो या इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन जो भी क़ुव्वतें हों, उनका मुकाबला करने की सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलामती के इदारों में, हमारी हुकूमत में, हमारी पुलिस में, हमारी फ़ौज में, लेवीज़ और FC में बहुत ज़्यादा अकमल दर्जे तक मौजूद है। और जिस तरह उनको शिकस्त दी जा रही है और उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो रहे हैं वो किसी से मख्फी नहीं है। पाकिस्तान की एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान, सलामती के इदारे और हमारी पुलिस कर रही है वो काबिल फ़ख्र है। कौमी पैगाम अमन कमेटी ने मुशावरत के बाद फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद 2 रोज़ा उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम बलूचिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख होंगे, तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदा होंगे, उनकी कोयटा के अंदर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी
اور ان کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا، اور حقیقی جو حالات ہیں، جو الحمدللہ بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے، جو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے، اور جو مصائب اور مسائل ہیں ان سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اسی طرح قومی پیغام امن کمیٹی نے متفقہ طور پر یہ بھی اعلامیہ جو ہے آج کا وہ جاری کیا ہے کہ جو اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان صورتحال ہے، افغانستان کی طرف سے پاکستان پر جو جارحیت کی گئی اور پاکستان کو جس انداز سے اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتوں کی ایما پر افغان سرزمین استعمال کر کے پاکستانیوں کا خون بہانے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے میں عملی طور پر جو افواج پاکستان کردار ادا کر رہی ہیں اور جہاد کر رہی ہیں، ہم متفقہ طور پر یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے، اور یہ خوارج کے خلاف اور فتنہ ہندوستان کے خلاف جو اس وقت جنگ لڑ رہی ہے، یہ جہاد ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق یہ جہاد کرنے والے افضل ترین لوگ ہیں، اور یہ جو بے گناہوں کا خون بہانے والے ہیں، جن کو قرآن کریم نے بھی یہ کہا ہے اللہ کریم کے حکم کے مطابق کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ ان کے خلاف ہماری افواج جو اس وقت جہاد کر رہی ہیں، بارڈر کے اوپر ہو یا ملک کے اندر ہو، یہ جہاد عظیم ہے، افضل ترین جہاد ہے، اور اس کا ساتھ دینا پوری قوم کی، علماء مشائخ کی، مذہبی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی یہ بات سمجھتی ہے کہ جس طرح بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، باقی جگہوں کے اندر پیغام پاکستان جو ایک متفقہ بیانیہ ہے جس کے اوپر 15,000 پاکستان کے علماء مشائخ کے، امام کعبہ کے، شیخ الازہر کے، امام مسجد نبوی کے دستخط ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے ملک میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو عملی طور پر ہمیں نافذ کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر، اپنے محراب و منبر سے۔ انشاءاللہ ایک جمعۃ المبارک رمضان کا جو ہے وہ اسی حوالے سے جو ہے وہ اس پر خطبات جمعہ ہوں گے۔ ملک کے اندر خامنائی صاحب کے جو شہادت کے بعد مظاہرے ہوئے اور اس میں جو تشدد دیکھنے میں آیا، کسی بھی صورت یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور یہ تمام مکاتب فکر کے اکابرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ پرامن مظاہرے احتجاج یہ حق ہے ہر کسی کا، لیکن ان کو تشدد میں بدلنا، میرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں، کل وزیر خارجہ صاحب نے جو نائب وزیر اعظم ہے بتایا ہے کہ دنیا میں واحد ملک ہے جس نے ایران پر حملے کی مذمت کی ہے، پاکستان۔ کیا پاکستان کے اندر تشدد کر کے، یہاں پر پرتشدد مظاہرے کر کے پاکستانیوں کو اس بات کی سزا دینی ہے کہ پاکستان نے ایران کے اوپر حملے کی مذمت کیوں کی ہے؟ خامنائی صاحب کی شہادت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ چاروں مکاتب فکر کے علماء مشائخ ہی نہیں، ہماری غیر مسلم برادری بھی اس کے اوپر غمزدہ ہے، اور اپنے ایران کے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔ تو یہ جو تشدد کرنے والے عناصر ہیں، یا مظاہروں کو پرتشدد بنانے والے ہیں، یا حکومتی املاک اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ کسی صورت نہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی یہ ایران کے خیر خواہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلم امہ کو وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے، اور حکومت پاکستان جو کردار ادا کر رہی ہے مسلم ممالک کے وحدت اور اتحاد کے لیے، سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو اس وقت کل جو بتایا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور باقی امور میں ہم نہ صرف اس کی تائید کرتے ہیں بلکہ امید رکھتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلم امہ کو وحدت اور اتحاد عطا فرمائے۔ ہم تمام اکابرین، ابھی آپ کے سامنے میرے اکابرین بات کریں گے، ایک بار پھر میں ان کی طرف سے اپیل کروں گا کہ احتجاج، مظاہرہ پرامن حق ہے، لیکن اگر کوئی تشدد کا راستہ اختیار کرے گا تو ریاست کو حق ہے کہ پھر اس کے خلاف
قانونی اور آئین کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کرے. اور آخر میں دعوت دوں گا اپنے ان تمام ساتھیوں کی طرف سے ان لوگوں کو کہ جو ہمارے ساتھی، جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی، جو ہمارے بچے گمراہ ہو گئے یا ان کے جذبات کو ان کو غلط جو ہے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی کہ آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے مطابق وہ واپس آئیں، ہم ان کے لیے بات کریں گے. جو بھی اس ملک کے آئین، قانون اور دستور کو تسلیم کرے گا انشاءاللہ ریاست اس کے لیے راستہ ضرور دے گی. میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب سے، جو کہ پاکستان نہیں پورے عالم اسلام کی ایک عظیم ترین شخصیت ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے، فتنہ خوارج کے حوالے سے ایک بہت ہمارے لیے ایک رہبر کا کردار ادا کر رہے ہیں، کہ وہ چند باتیں آپ سے وہ ارشاد فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قومی پیغام امن کمیٹی کا یہ جو دورہ تھا بلوچستان کا، اس کو اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ یہاں آ کر ہم اپنے افواج کو، اپنی پولیس کو، ایف سی کو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور ہم حالات کا بھی ہم جائزہ لیں گے. تو 3 دنوں میں جس طریقے سے ہمیں یہاں کی انتظامیہ نے پریزنٹیشن دی، جو اعداد و شمار ہمیں دیے، ہم اس پہ حیران ہو گئے، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. اور آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اور میں خاص طور پہ باقی تمام صوبوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب ان کی نگرانی میں جس طریقے سے یہاں کوآرڈینیشن کے ساتھ یہاں کام ہو رہا ہے، کہ یہاں گورنر صاحب ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، آئی جی ہو، ایف سی ہو، پولیس ہو، یہ سب مل کر جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ ایک قابل تقلید نمونہ ہے. تمام صوبے اس کی تقلید کریں. ہماری یہاں ملاقات سی ایم صاحب سے ہوئی، اور انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے لیے افطار کا انتظام کیا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ تمام اپنے کابینہ کے وزراء کو انہوں نے شامل کیا، اور حزب اختلاف کے لوگوں کو بلا کر ایک زبردست گلدستہ سجایا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سیکرٹری داخلہ صاحب حفظہ شفقات صاحب نے جو ہمیں پریزنٹیشن دی، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہاں بلوچستان کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے صحت اور روزگار اور اتنے سارے کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر ہماری شہداء کی فیملیز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، تو ہمیں بہت احساس ہوا، اور یہ معلوم ہوا کہ صرف پولیس کے 1115 آفیسر شہید ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا فگر ہے. تو ہم نے ان شہداء کی فیملیز کو ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، ان کا شکریہ بھی ادا کیا. ان کو ہم نے پیشکش کی ہے کہ جامعۃ الرشید، الغزالی یونیورسٹی اور جتنے ہمارے کالج ہے، منہاج القرآن ہے، جتنے ہمارے ادارے ہیں، ہم فوج اور پولیس اور ایف سی کے شہداء کے بچوں کے لیے مفت ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے. تو وہ جہاں بھی، چاہے وہ کراچی میں ہو، بلوچستان میں، جہاں بھی انشاءاللہ ہم اس کا خیال رکھیں گے. پھر گورنر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، تو ان کی گفتگو بھی وہی تھی جو سی ایم کی گفتگو تھی، اور وہی گفتگو تھی جو ہم نے اسلام آباد میں سنی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری فوج، ہماری ادارے سب اکٹھے ہیں، مل کر کام کر رہے ہیں. تو میں اس وزٹ کے نتیجے میں پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے حالات بہت جلد ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جتنے کام یہاں ہو رہے ہیں، جو اقدامات ہو رہے ہیں، جس اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، ان کے نتائج ہمیں ملیں گے. آخر میں ہماری ملاقات جو ہوئی تھی وہ کور ہیڈ کوارٹر میں ہوئی، اور جنرل راز صاحب جو کور کمانڈر صاحب ہیں یہاں کے، انہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی. جس طریقے سے انہوں نے پوری تاریخ بیان کی بلوچستان کی، اور یہاں کے حقیقی مسائل ہمارے سامنے اجاگر کیے. تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ میں اپنے میڈیا کے چینل سے یہ درخواست کروں گا کہ کور کمانڈر کوئٹہ سے اور حفظہ شفقات صاحب سے باقاعدہ یہ پریزنٹیشن لیں اور دنیا کو بتائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں ہمارے اس وزٹ کو قبول فرمائے. اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جہاں ضرورت ہو انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں گے. اور عید کے بعد جو 2 روزہ یہاں سیمینار ہوگا وہ غیر معمولی ہوگا. انشاءاللہ امید ہے کہ پورے ملک کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں یہاں پر ہمارے شیعہ علماء کونسل اور اہل تشیع حضرات کی نمائندگی کے لیے علامہ سید ہاشم موسوی صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ملک کو سخت ترقی کر سکتا ہے جب اس میں امن و امان ہو. اگر امن و امان کو دھچکا لگے تو اس کے مضر اثرات زندگی کے تمام شعبوں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں.
अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन अमान क़ायम करे, हमारे मुल्क के सियासतदानों को, हमारे मुल्क के मसूलीन को, हमारे मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को, सबको अमन लाने के सिलसिले में जो उनकी कोशिश हो रही है, एक हद तक जो कोशिश हो रही है वो खुशायंद है, और मज़ीद उनसे तवक्को है कि वो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में किरदार अदा फरमाएंगे। और एक अभी शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने ज़ोर दिया कि हम मुकालमे के ऊपर तवज्जो दे रहे। ये एक बेहतरीन हल है अमन के लाने में कि जो मुखालिफ तबका है वो अपना दलील पेश करे, हाथ बुरहान को इनको तुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपना बुरहान पेश करो। दलील के सामने मैं समझता हूँ कि हम सबको झुकना चाहिए, ये कुरानी हुक्म भी है और इसमें राय निजात भी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी, अमीर मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियान मरसूस ऑपरेशन की फ़तह की लज्जत और मठास हमारे फील्ड मार्शल इज़्ज़त माब जनाब जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की है, इंशाअल्लाह हम उसे कभी माद नहीं पड़ने देंगे। इसी जज्बे के तहत कौमी पैगामी अमन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान कोयटा बलूचिस्तान के दौरे पे यहाँ पर हाज़िर हुए थे हम, और यहाँ पहुँचकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बलूचिस्तान का असल और हकीकी चेहरा देखा है, उससे हम पूरी दयानतदारी से ये बात कह सकते हैं, जैसे हमारे रूह रवां अल्लामा हाफ़िज़ ताहिर महमूद शफ़ी साहब की गुफ्तगू में और हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की गुफ्तगू में आपने समाअत किया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक इत्मीनान लेकर शरह सदर के साथ, खुशी के साथ यहाँ से पलट रहे हैं, और जो थोड़े बहुत यहाँ पर मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इंशाअल्लाह हम दोबारा एक जज्बे के साथ आएंगे, और यहाँ मोहब्बत बांटने के लिए, अखलाक बांटने के लिए, सब के जो गिले शिकवे उसको दूर करने के लिए, जो थोड़े बहुत हमारे साथियों के दिलों में हैं उनको ख़त्म करने के लिए इंशाअल्लाह हम दोबारा ईद के बाद हाज़िर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बादो। 3 दिन से जो हम यहाँ मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र और सियासी पार्टियाँ और इसी तरह मुख्तलिफ़ अक़वाम जो है यहाँ, जैसे पख्तून हज़रात हैं, हज़ारा हैं, और इस तरह बलोच भाई हैं या बरावी हैं, उनसे मुलाकातें भी की हैं। मैं पहले भी आ चुका हूँ। इन 3 दिनों में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, ये पूरी हमारी कमेटी, कि बलूचिस्तान की अवाम, ख़वातीन और मर्द, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, और वो किसी किस्म का ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे पाकिस्तान को या इस्लाम को नुकसान पहुँचे। बहुत सारे ऐसे हम इस नतीजे पर भी पहुँचे हैं कि कुछ ऐसे प्रोपोगंडे हैं जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अवाम के यहाँ फैलाए जा रहे हैं, या उनको मिसगाइड किया जा रहा है, या जो है उनको वरगलाया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बलूचिस्तान के और कोयटा के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कायम दायम रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिराज तहसीन है हमारी फोर्सेस के और हमारी पुलिस, एफसी सब के सब लोगों और इंतज़ामिया के तमाम अफराद को जो इस रियासत पाकिस्तान की हिफाजत के अमल में शरीक हैं, और हमें हमारा सलाम अक़ीदत है उन तमाम शुहदा को, उनकी फ़ैमिलीज़ को, उनकी बेवाओं को और उनके बच्चों को कि जो उन्होंने इस रियासत पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ताहिर अशरफी साहब ने, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने बात फरमाई, जो हमने यहाँ प्रेजेंटेशंस देखी, जो यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान जो हमारे सामने लाया गया, जो हमें पूरी ब्रीफिंग दी गई, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सूबा भी संभाला जाएगा और रियासत पाकिस्तान भी तरक्की करेगी, और इस्लाम के और रियासत पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं इंशाअल्लाह ये नीस्त व नाबूद होंगे, और पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, बलूचिस्तान इंशाअल्लाह आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी पैगाम अमन कमेटी का ये आला सती इजलास 3 दिन से बलूचिस्तान में है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बलूचिस्तान से 100% मुतमईन हैं। कुछ मसाइल हैं, इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द हल हो जाएंगे, और ये मुल्क पाकिस्तान और ये सूबा ख़ास तौर पर इंशाअल्लाह ये अमन का गहवारा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तमाम सियासी अस्करी क़यादत, उलमाए कराम और अवामुन्नास का ये
मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, और यही पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ और बयानिया है कि पाकिस्तान की सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान पर जो हमले हो रहे हैं ये हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि ये तहम्मुल, रियासत के तहम्मुल का नतीजा है। रियासत चाहती है कि बलूचिस्तान की सरज़मीन जो मोहब्बतों की सरज़मीन है, इस मोहब्बतों की सरज़मीन को खून से नहीं बल्कि अखुव्वत से सींचा जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक। यहाँ मैं एक और बात अर्ज़ करता चलूँ कि कौमी पैगाम अमन कमेटी के तहत इंशाअल्लाह तमाम सूबों में इज़ला और डिविज़नल सतह पर जो पैगाम अमन कमेटियाँ हैं उनके क़याम के सिलसिला में पेशरफ्त हो रही है। और जो बात मैंने पहले अर्ज़ की है फिर एक बार उसको वाज़े कर दूँ कि इस वक्त जो हमारे बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान के साथ जंग जा रही है हम उसे जिहाद समझते हैं, और अफ़वाज पाकिस्तान जो जिहाद कर रहे हैं तमाम पाकिस्तान के उलमा, मशाइख, पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज की पुश्त पर खड़ी है और फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इन तमाम इक़दामात पे एक पाकिस्तानी भी ऐसा नहीं है जो अपनी फ़ौज से इत्तेफाक ना करता हो। और एक और बात अर्ज़ करना चाहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा जो किया जाता है कि अफ़गानिस्तान में फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान का के लोग नहीं हैं। हम शवाहिद के साथ अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक को भी, अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत को भी, अफ़गान तालिबान को भी शवाहिद पेश कर चुके हैं कि वहाँ कितने कैंप हैं, वहाँ कौन कौन रह रहा है, कि कहाँ रह रहा है, किस तरह रह रहा है। तो लिहाजा ये झूठ बोलकर कोई प्रोपेगेंडे के ज़रिए सोशल मीडिया के ये जो अफ़गानिस्तान में खारजियों के सरपरस्त और सहूलतकार हैं वो गुमराह नहीं कर सकते। हम ये बात कहना चाहते हैं, इस बात के ऊपर पूरे आलम इस्लाम के अकाबरीन में से 20-25 मुंतखब करेंगे क्या पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त जो ऑपरेशन कर रही है वो जिहाद है कि नहीं है। आप ले आए, हम उलमा इस्लाम के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करने को तैयार हैं। जो बेगुनाहों के कातिल हों, मैंने पहले अर्ज़ किया, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डॉक्टर आसम मीर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 2-3 दिन से जो हमारा बलूचिस्तान का दौरा था, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ के बारे में हमें आगाही मिली जो पहले नहीं थी। और इसके साथ दूसरी अहम तरीन चीज़ वो ये कि मिलिट्री, सिविल और सियासी तमाम ज़िम्मेदारान के दरमियान एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और सबका एक ही बयानिया है, और ये इस सूबे की कामयाबी का एक बेहतरीन इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ज़रिया है। और तीसरा ये कि इस वक्त हमारा ये सूबा जो हालत जंग में है, एक तरफ फितना हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और दूसरी तरफ फितना अल ख़वारिज के ख़िलाफ़। तो हमने तमाम अदारों को अपनी तरफ से, पहले भी हमने अदारा मिनहाजुल कुरान की तरफ से ये काम किया कि इल्मी तहकीकी मवाद फ़राहम किया ताकि हमारे लड़ने वाले जवानों को फ़िक्री वाज़हियत और क्लैरिटी मिले, उन्हें पता हो कि जिनके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, हम जिहाद कर रहे हैं, चाहे वो इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है लेकिन वो बागी है। तो इसलिए जो नौजवान हैं इस वक्त बलूचिस्तान के, उनकी फ़िक्री क्लैरिटी के लिए भी ये पैगाम अमन कमेटी जो है अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। जो उनको गलत ज़हन साजी करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी सतह पे उकसाया जा रहा है, उसके तदारुक के लिए इंशाअल्लाह हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था मुझे मशरक़ से खुशबू आती है, तो ये पाकिस्तान वही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना 14 सदियों बाद पहली रियासत है, वाहिद फ़ौज है जिसका माटो ईमान, तकवा, जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह है। और बलूचिस्तान जो है ये इसलिए अहम है कि सबसे पहले इस्लाम यहाँ से दाखिल हुआ, सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर अनवर में ये इलाका फ़तह हुआ। और शाह नेमतुल्लाह वली ने फरमाया है कि ये पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक कायम रखेगा
اور یہ جو ہماری افواج ہیں یہ انشاءاللہ امام مہدی کا لشکر بنیں گی. اور آخری بات، یہ اسلامی ریاست ہے، اس میں مسلح جد و جہد حرام ہے. وما علیہ الا البلاغ. جی بالکل، پہلے تو پاکستان کی تمام ہندو برادری نے شہدائے بلوچستان کو خراج تحسین اور سرخ سلام پیش کیا. اور جیسے کہ بلوچستان حکومت یہاں کی بلوچستان کی جو ہندو برادری ہے، سکھ برادری ہے، کرسچن برادری ہے، ان کا بالکل تعاون بھی کر رہی ہے اور ان کو بالکل سیکیورٹی اور ہر چیز فراہم کی جا رہی ہے. ہم پاکستان کی ہندو برادری، کرسچن برادری، سکھ برادری کی جانب سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو پیغام امن کمیٹی کی جانب سے جو اپریل میں ہونے والی مشائق کانفرنس میں بھرپور شرکت کی جائے گی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے جائیں گے. پرسوں جمعۃ المبارک ہے، اس میں پورے ملک کے اندر یوم وحدت و اتحاد امت کے عنوان پر اور استحکام پاکستان کے عنوان پر خطبات جمعہ ہوں گے. اور جو جماعتیں احتجاج کرتی ہیں یا مظاہرہ، ان سے ہم ایک بار پھر سب یہ اپیل کریں گے کہ وہ اپنے اندر یہ ضرور دیکھیں کہ کوئی انتشار پیدا کرنے والا ان کے اندر نہ آ جائے. یہ ان جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے، ان رضاکاروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انتشار پھیلانے والے جو ہیں ان کو خود بھی جو ہے وہ نوٹ کرے، تاکہ کوئی ایسا ماحول پیدا نہ کرے جس سے جو ایک قومی وحدت ہے. اور اس وقت جتنی امت کو وحدت کی ضرورت ہے اور پاکستان اس میں جو کردار ادا کر رہا ہے، خواہ وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہماری قیادت نے کردار ادا کیا ہے یا عالم اسلام کے باقی اسلامی ممالک کے ساتھ، اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اس کو ہم نے طاقت دینی ہے. اور انشاءاللہ اسی طاقت سے ہم آگے بڑھیں گے. ہم شہداء اور غازیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کر دے. یا اللہ، پوری امت میں وحدت اور اتحاد پیدا کر دے. اور یہ جو جنگوں کے خطرات یا اللہ پیدا ہو رہے ہیں، یا اللہ اس سے انسانیت کو محفوظ کر دے. اور پرامن طریقے سے تمام معاملات جو ہے حل کرنے کی یا اللہ مسلم امہ کی قیادت کو یا اللہ توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. جو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کی غیب سے مدد و نصرت فرما. یا اللہ ان کی غیب سے مدد و نصرت فرما. یا اللہ جو اس ملک کے درپے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ انہیں تباہ و برباد فرما. یا رب العالمین، یا الہ العالمین، رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں یا اللہ وسعتیں ہمیں عطا فرما. جو ہمارے پاک فوج کے، سلامتی کے اداروں کے، عوام کے شہداء ہیں یا اللہ پولیس کے، ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کی غیب سے مدد فرما. ہر طرح سے خیریں عطا فرما اور ہر طرح کے شرور سے یا اللہ پناہ دے. جو زخمی ہیں یا اللہ ان کو جلد از جلد صحت عطا فرما. یا اللہ پاکستان کے جو عساکر ہیں یا اللہ جو ہماری قیادت ہے یا اللہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، اور یا اللہ پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے یا اللہ ساری قیادت کو، سیاسی مذہبی قیادت کو متحد ہو کر یا اللہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ عرض حرمین شریفین، الاقصی اور تمام بلاد اسلامیہ اور پاکستان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین، قومی پیغام امن کمیٹی کے اراکین کی چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کے ہمراہ نیوز کانفرنس. حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان ملک کے انچ انچ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. پاکستان کی سلامتی سب سے اولین ترجیح ہے. خبرنامے میں آپ کو بتاتے ہیں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے سعودی سفیر نواف سعید المالکی سے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات کے حوالے سے وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ سعودی ذرائع نے بحیرہ احمر میں واقع بندرگاہ یامبو کے ذریعے سپلائی کی سیکیورٹی کی
यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान के लिए खाम तेल उठाने के लिए जहाज को पाकिस्तान से बंदरगाह याम्बो रवाना करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आवाम के लिए तवानाई की सप्लाई चेन के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। पाकिस्तान की बेशतर पेट्रोलियम सप्लाई आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते आती है। उन्होंने कहा कि इन हालात में सऊदी अरब जैसे ब्रदर ममालिक की हिमायत पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। उम्मीद है कि बंदरगाह याम्बो से तेल की सप्लाई में पाकिस्तान को तरजीह दी जाएगी। इस मुलाकात में सऊदी सफीर ने कहा कि किसी भी हंगामी ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब आजमाइश में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना के ऑनलाइन इजलास में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सऊदी काबीना ने GCC ममालिक पर आने हमलों की संगीन जुर्म करार दिया और कहा कि इन हमलों से इलाकाई अमन और ममालिक की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचा है। सऊदी काबीना ने इस अज़्म का भी आयदा किया कि सऊदी अरब अपनी सलामती के दिफा समेत शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। सऊदी काबीना के इजलास में ईरानी हमलों के बाद सऊदी अरब की हिमायत करने वाले ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में ईरानी कौंसल खाने का दौरा किया और कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादा से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनाई और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर गहरे रंज गम और दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कौंसल खाने में फातिहा खानी की और शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आला ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात कलम बंद करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत और अवाम दुख की घड़ी में ईरान के साथ बराबर के शरीक हैं। अबू धाबी में पाकिस्तान के सिफारत खाने ने मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की सहूलत और राबताकारी के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुतारिफ कराया है। सिफारत खाने के मुताबिक तमाम कम्युनिटी मेंबरान को तरगीब दी जाती है कि वो दर्ज झैल लिंक पर रजिस्टर करें ताकि रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों की फौरी मुआवनत की जा सके। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर महफूज और हर किस्म की कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी जारी करदा प्रेस रिलीज में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की जुज़वी बंदिश की रिपोर्ट को बिल्कुल गलत और गुमराहकुन करार दिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की कमर्शियल फ़ज़ाई ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब है। इसके अलावा मुतासरा रास्तों के लिए मुतबादिल रूट्स मामूल के मुताबिक इस्तेमाल हो रही हैं और आमद, रवानगी और फ़्लाइट्स पर कोई पाबंदी नहीं है। नाज़रीन, अफगान तालिबान, फितनौल ख़वारिज और हिंदुस्तान के खिलाफ पाक फ़ौज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फ़ौज ने 50 मुख्तलिफ मकामात पर ख़वारिज के ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक फ़ौज की जानिब से 3 और 4 मार्च को दरमियानी शब भारी हथियारों से किला सैफुल्लाह समेत चमन, संबाजा, गडवाना, जानी और गजनाली सेक्टर पर मौसर कार्रवाइयाँ की गईं। इन कार्रवाइयों के दौरान अफगान तालिबान, फितनतुल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान को भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात हैं। पाक फ़ौज अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ मुल्की खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ फ़ौज पाकिस्तान की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। चमन सेक्टर में पाक फ़ौज की खुफिया इत्तलात पर अफगान तालिबान की मुसल्लह तश्कील के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की गई। इस दौरान एक अफगान तालिबान दहशतगर्द हलाक जबकि 3 को जख्मी हालत में जिंदा पकड़ लिया गया। पाक फ़ौज ने आला पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया। पाक फ़ौज खित्ते में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला ताअत्तुल जारी रखेगी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की मुबैना जाहिरियत के जवाब में सरहद पार कार्रवाइयों का दावा किया है, जिनमें बिग्राम एयरबेस को निशाना बनाने की इत्तलात भी शामिल हैं। मारूफ अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी हमले में बग्राम एयरबेस का एक एयरक्राफ्ट हैंगर 2 वेयर हाउस तबाह हुए, जिनकी सेटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गईं। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने भी हमलों की तस्दीक की है। हालिया कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ की गईं और एक हफ्ते के दौरान दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया। बग्राम एयरबेस को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अफगानिस्तान में कहीं भी कार्रवाई कर सकता है।
मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी ने फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान में शुरू किए गए ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। उलमा इकराम ने कहा कि फितनाल खवारिज के खिलाफ पाक अफवाज का ये इक़दाम बरवक्त, ज़रूरी और दुरुस्त है और मुल्क के तमाम मसालिक और मज़ाहिब के उलमा अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। मुकर्रिरीन ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गान अवाम को कई दहाइयों तक पनाह और सहूलियात फराहम की, ताहम बाज़ अनासर अफ़गान सरजमीन का गलत इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है और काबिल मज़म्मत हैं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से नौजवानों के लिए वजीर आजम का स्पेशल इनिशिएटिव। आगे बढ़ें और तरक्की के नए दर खोलें। कॉटन पावर लूम इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार का सफर। NAFDAC और ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल शटल लेस मशीन सुपरवाइजर के लिए इंडस्ट्री के तजर्बाकार असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी मुफ्त अमली तरबियत का आगाज, जिससे नौजवानों को मिले अंदरून और बैरून मुल्क बाइज्जत रोजगार। दाखिले और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट nsis.nafdac.gov.pk विजिट करें। दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2026। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा। ताहम शाम और रात के औक़ात में शिमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्की है। मैदानी इलाकों में दिन की दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को है। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पाकिस्तान का शहर लाहौर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रहा। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग तीसरे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड किया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का दारुल हुकूमत किंशासा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड किया गया। जबकि छठे और आखिरी नंबर पर नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 रिकॉर्ड किया गया।